हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकांक्षा और डेंटल मैजिक बाय आकांक्षा में मैं आज आपको पढ़ाऊंगी पिम्फिगस वुल्गैरिस। सबसे पहले हम स्टार्ट करें कि आप सबों को बिलेटेड हैप्पी होली। होप सो आपकी होली बहुत अच्छी बीती हो। और अब हम स्टार्ट करते हैं। पिम्फिगस वुल्गैरिस जो है एक क्रोनिक ऑटो इम्यून म्यूकोक्यूटेनियस डिजीज है जो कि फ्रिक्वेंटली अपीयर्स होता है फर्स्ट ओरल कैविटी में, देन प्रोग्रेस टू इन्वॉल्व द अदर साइड। देन इसके टाइप्स होते हैं पिम्फिगस वुल्गैरिस और पिम्फिगस वेजिटेनस, देन फॉलेसियस, इरिथमेटस एंड ब्राजीलियन पिम्फिगियस। देन पैथोजेनेसिस इसका होता है डेस्मोग्लियंस 1 and 3 आर रिस्पॉन्सिबल for cell addition in the skin and mucosa, then autoantibodies from the against and desmoglians 1 and 3 and epithelial cell separation due to lack of सेल एडिशन एंड इंट्राएपिथेलियल बुल्ला फॉर्मेशन। देन उसके बाद इसके एसोसिएटेड फैक्टर होते हैं। एसोसिएटेड फैक्टर्स में ड्रग्स कैप्टोप्रिल, पेनिसिलामाइन एंड रिफामापिसिन, फिनोबार्बिटॉन एंड फेनीब्यूटाजोन। देन उसके बाद रेडिएशन सर्जरी, डाइट पर्टिकुलरली गार्लिक एंड इमोशनल स्ट्रेस, देन वायरस, हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड एक्सपोजर एंड प्रेग्नेंट फीमेल, सर्टेन ऑटो एंटीबॉडीज डिजीज। देन क्लिनिकल फीचर में मोस्ट कॉमन पिम्फिगियस होता है एज 40 to 70 ईयर्स। देन फीमेल्स मोस्टली अफेक्टेड देन मेल्स एंड ब्लिप लाइक स्ट्रक्चर, और जो कि डिफ्यूज होता है जिलेटेनियस प्लैक्स में। एंड देन रेपिडली डेवलपिंग वेसाइकल्स होते हैं और वुले ऑन द सेवरल एरिया ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन आर फाउंड। एंड वेसाइकल्स जो होते हैं क्लियर फ्लूइड कंटेन करते हैं इनिशियली, देन उसके बाद में इसमें पस फॉर्म हो जाता है। और लीजन्स जो होते हैं हमारे माउथ में ये वाइडली स्प्रेड हो जाते हैं फिर पूरे स्किन पे। देन वेसाइकल्स और बुले आर फ्रेजाइल एंड रप्चर ऑलमोस्ट एज सून एज दे फॉर्म। देन उसके बाद रप्चर वेसाइकल इन द ओरल कैविटी कैन लीव एक्सट्रीमली पेनफुल एंड सुपरफिशियल इरिथमेटस, अल्सर्स एंड रैग्ड बॉर्डर। देन ब्लीड जो होते हैं वो प्रोफ्यूजली में नॉट कवर्ड विथ ब्लड एंड टिंग्ड exudates, then and gentle traction and oblique pressure on the unaffected area around the lesion and cause denudation and stripping of the normal skin or mucosa membrane. Then उसके बाद this phenomena is known as Nicolsi sky साइन। देन उसके बाद स्किन लीजन जो होते हैं अपीयर होते हैं ओवर द स्कैल्प, ट्रंक एंड अम्बिलिकल एरिया। और ओरल लीजन of Pemphigus vulgaris can be fulminating in nature and can spread rapidly to eye and skin. Then patient condition becomes as a serious and severely burned cases, especially in the terms of the fluid loss and risk of the secondary infection. Then patient may be die of dehydration and septicemia. Heal of scar formation is the mucosal lesion. Heal by scar formation, but the mucosal lesion heal without scarring the formation of keratotic lesion. Pemphigus vulgaris may involve any part of the oral cavity, but more frequently found to trauma. Example: cheek, labial mucosa, and ventral surface of tongue and palate and gingiva, etc. And then ulcers can be very large in size and causing the severe pain and take much longer time to heal. Then patient with oral Pemphigus vulgaris often have the sore mouth and severe pain, excessive salivation, bleeding, difficulty in taking food, and extremely foul smell in the mouth. Pemphigus vulgaris ocular lesion may develop in the form of bilateral conjunctivitis. Then अब हम पढ़ेंगे हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजिक में होता है बेसिक डिफेक्ट इन द इंट्राएपिथेलियल एंड desmotracted as acantholysis. Then cellular outline as a round and rather polyhedral and intracellular bridge are lost. Then उसके बाद suprabasilar splits, thrombstones and acantholysis. Then immunohistochemistry में होता है in Pemphigus immunofluorescence test of the perilesional of a specific IgG with intercellular area of epithelial. The intensity of the fluorescence is the greatest in the suprabasilar lesion and gradually it becomes decreased to the wards of the surface of epithelium. Then circulating autoantibodies against the epithelial intercellular desmosomes are of the diagnostic importance. Then differential diagnosis में आते हैं pemphigoid, erythema multiforme, bullous lichen planus and
dermatitis herpetiformis, then desquamative gingivitis, toxic epidermal necrolysis and aphthous ulcers और epidermolysis bullosa। देन ट्रीटमेंट में हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड्स देते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देते हैं, एजाथायोप्रिन एंड मिथोट्रेक्सेट, देन एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट द सेकेंडरी इन्फेक्शन एंड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं हम बैलेंस के लिए टू स्ट्रिक्टली मेंटेन्ड, बैलेंस मस्ट बी स्ट्रिक्टली मेंटेन। तो आज का आपका मेरा वीडियो कैसा लगा? आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।